मॉर्निंग एवरीवन, आई होप एवरीथिंग इज गुड। सब कोरोना से तो बचे ही होंगे। इतने स्टूडेंट्स हैं, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो यू मस्ट हैव एन आइडिया दैट दिस टाइम इज ऑफ इन्फेक्शंस एंड यू शुड स्टे अवे फ्रॉम इन्फेक्शंस एज योर studies and your exams, your NEET papers are also nearing by. So let's start with the link reaction and its relationship with respiration. We are going to see that how the link reaction, which is the second part in this regard. One is glycolysis. पहला था glycolysis, दूसरा है link reaction, third is ETC or not ETC, it is Krebs cycle. Fourth is ETC and oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation. Clear with this? We have completed the glycolysis that you can check out on I button or more from Biology Central. Now we are going to study about the link reaction. What is link reaction? As मैंने बताया था आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में that किसी भी प्रोसेस को पढ़ते हुए हम चार चीजें कंसीडर करते हैं: what, why, where and how. क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहां हो रहा है और कैसे हो रहा है. कैसे हो रहा है इज द कंप्लीट प्रोसेस. क्या हो रहा है? द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए और इथेनॉल. एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर द स्टार्टिंग ऑफ एरोबिक एंड इथेनॉल विच इज द रिजल्टेंट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. So the link reaction will form these two things. Clear this? Now link reaction will decide either the Krebs cycle will go forward or the fermentation will go forward. That was about what. Then we have why. Why is as I clearly told you to start the Krebs cycle or fermentation. इसके बाद आता है where. तो link reaction always takes place into the mitochondrial matrix. It is carrying out, it is being continued into the mitochondrial matrix. What is happening now? We are on to how, but before how we are gonna see some things. कुछ चीजें हम देखेंगे, जैसे सबसे पहला है एंजाइम, और फिर ये सब चीजें देखने के बाद वी आर गोना डिस्कस कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये लिंक रिएक्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये किस तरह से मूव करती है. Either it will go into the aerobic respiration direction or it will go into the anaerobic condition. Clear? Aerobic is presence of oxygen, anaerobic is absence of oxygen. So absence of oxygen is responsible for anaerobic condition. तो कैसे? ठीक है ना? क्योंकि आप लोग अभी देखेंगे क्यों. एंजाइम्स में आता है सबसे पहले पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स. Pyruvate dehydrogenase complex. Second condition of input. Now this pyruvate dehydrogenase complex have TTP, which is thiamine triphosphate, as energy source. Decarboxylase enzyme that is responsible for release of carbon dioxide. Trans-acetylase enzyme and Mg2 positive as cofactor. ठीक है, this Mg2 positive और divalent cation we have studied from the first step of glycolysis कि यही होता है cofactor in the process of these. Clear with pyruvate dehydrogenase complex? ये होता है pyruvate dehydrogenase complex. Apart from that, अब आते हैं substrates. First substrate is pyruvate. Second substrate in this regard is NAD positive, and third is coenzyme A. Clear with this? These are the starter of any reaction in presence of this. यानी ये क्या है? Input. Talking about output, what will be formed? So हम देख लेते हैं इन्हीं तीनों से कि आउटपुट किस तरह से होगा. Pyruvate plus NAD positive plus coenzyme A, two molecules of pyruvate, okay, in presence of the dehydrogenase complex will move forward and form acetyl coenzyme A plus
NaDH plus H positive plus 2 molecules of carbon dioxide. While studying introductory lecture about aerobic respiration, we have seen that there are 6 carbon dioxide molecules released. 2 यहां से रिलीज हो चुके हैं ऑलरेडी, और 2 रिलीज होंगे कहां से? ड्यूरिंग क्रैब साइकिल। 4 रिलीज होंगे ड्यूरिंग क्रैब साइकिल। इतना प्रोसेस समझ में आ गया? नाउ दिस रिएक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट इज फॉर क्रैब्स साइकिल, यानी दिस कंडीशन इज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जब भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, पाइरुवेट NAD और कोएंजाइम A के साथ मिलकर एसिटाइल कोएंजाइम A बनाता है, NADH पॉजिटिव बनाता है, और इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। क्लियर? एम आई क्लियर? समझ में आ गया होगा अगर इतना। तो ये प्रोसेस जो हो रहा है, ये हो रहा है, द प्रोसेस इज नेम्ड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। दिस इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये तो थी बात एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जब भी होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो ये रिएक्शन इस तरह से फॉरवर्ड होती है। क्या होगा अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है? बट बिफोर दैट वन थिंग, दिस एसिटाइल कोएंजाइम A इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द क्रैब साइकिल। ये पहली रिएक्शन है क्रैब साइकिल की, पहला स्टेप है क्रैब साइकिल का, जहां पर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ एसिटाइल कोएंजाइम A मिलता है, जिसकी वजह से सिट्रिक एसिड बनता है। क्लियर विद दिस? अब इस सिट्रिक एसिड से मैलिक एसिड बनेगा, which is of 5 carbon. This citric acid is of 6 carbon, 4 carbon, 2 carbon, 6 carbon. This will make malic acid, which is of 5 carbon. No, 4 carbon again. That we will see in Krebs cycle. Okay. What is happening? This is of 3 carbon. Acetyl coenzyme A is of 2 carbon. 1 carbon बचा हुआ कहां गया? यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स थे पाइरुवेट के, 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A के। ये थी बात एरोबिक की। बात कर रहे हैं एनारोबिक कंडीशन की। एनारोबिक कंडीशन में यही सेम लिंक रिएक्शन, पाइरुवेट 2 मॉलिक्यूल्स विल फॉर्म C2H5OH। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 2 molecules plus carbon dioxide, 2 molecules. Clear with this? Now there can another reaction in this regard. को fermentation में इथेनॉल भी बन सकता है, वो यहां पर देख गया, और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो ये एरोबिक, ये एनारोबिक। अब क्यों हो रहा है ऐसा? सी, whenever we talk about ETC और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, OP is ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। NADH plus H positive is the reducing molecule. This reducing molecule in presence of oxygen gives out NAD positive. स्टार्टिंग कहां से हुई थी? स्टार्टिंग भी NAD पॉजिटिव से हुई थी। NADH plus H positive formed. This will undergo ETC and oxidative phosphorylation. NADH positive will with oxygen change into NAD positive plus water plus 3 ATP. ये प्रोसेस है, इसको काफी डिटेल से हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। अब ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो NAD पॉजिटिव जो है वो रिसाइकिल हो रहा है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो ये प्रोसेस कैरी आउट नहीं हो सकता। NAD पॉजिटिव नहीं बनेगा, NAD पॉजिटिव यहां पर भी नहीं आएगा, और COA जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम A में चेंज नहीं हो सकता, और क्रैब साइकिल नहीं चलेगी। समझ गए? ये थी एनारोबिक की बात। अब यहां पर देख रहे हो आप, कहीं भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है, बट प्रोडक्ट जिसकी फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है वो यहां पर इन्वॉल्व है। ठीक है। अब NAD प्लस अगर नहीं है तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस भी नहीं हो सकता, और एक सेल स्टार्वेशन में चला जाएगा क्योंकि ATP प्रोड्यूस नहीं हो रही। सो इसकी हेल्प से NAD प्लस की
फॉर्मेशन करवाई जाती है, क्योंकि जब भी इथेनॉल को ब्रेक डाउन किया जाएगा ये यूज करेगा NADH प्लस H पॉजिटिव, जिसकी वजह से रिलीज होगा NAD। NADH, this will use NADH and production of NAD positive will takes place, and this NAD positive will go into glycolysis, जिसकी वजह से ATP फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये फर्मेंटेशन एक्चुअली एक वेस्टफुल प्रोसेस है, इट इज ओके। 59 कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एरोबिक में 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। बट फर्मेंटेशन इज अ काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, जिसके वजह से स्टार्वेशन ना हो। ठीक है, बाकी चीजें हम डिटेल से पढ़ते रहेंगे। फटाफट से सब्सक्राइब करके और लाइक कमेंट, अगर कोई प्रॉब्लम है फ्रॉम कंप्लीट 11th 12th बायोलॉजी और नीट, आप लोग नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं, या चैनल अबाउट में जाके एक फोन नंबर दिया गया है और इंस्टाग्राम दिया गया है, वहां से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। हैव अ नाइस टाइम।